इष्टदेव परम कृपाळु भगवान श्री स्वामीनारायण वड़ताल धाम में प्रगट विराजमान अपना सौना आराध्य श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री लक्ष्मीनारायण देव, श्री राधाकृष्ण देव, श्री धर्मदेव, भक्तिमाता वासुदेव पावन सानिध्य थी आज महासुद पंचमी श्री वसंत पंचमी एक पवित्र पर्व। त्यारे आजना पर्वे अपना वड़ताल धाम ने विषय अपना मुख्य कोठारी स्वामी डॉक्टर श्री संत वल्लभ स्वामीजी और ज्ञानबागना अपना पार्षदवर्य स्वामी लालजी भगतजी आमना द्वारा एक एवो प्रयास सरस मजानो करवामां आवी रह्यो छे कि कुलवृक्ष नामक एक संस्था द्वारा गुजरात खाते आपણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના તમામ આશ્રિતોનું ખાસ કરીને વંશાવલી એક નિર્મિત થાય કે જેમાં આપણા શાસ્ત્રોની અંદર આપણા વડીલોના પૂર્વજોના જે કંઈ નામા વિધાન હોય તો એની પરંપરામાં વર્તમાન સમયમાં જે ભક્તજનો આજની તારીખમાં હોય તો એમની નામાવલી એમના પૂર્વજોનો આખી વંશાવલી જો આપણને પ્રાપ્ત થાય તેના કારણે આવનારા વર્ષોમાં આપણા મૂળ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વતી ખૂબ સારું કામ થાય। આના માટે પાર્ષદવર્ય શ્રી લાલજી ભગતજીનો ખૂબ સારો પ્રયાસ છે। આપણા શ્રી જિગ્નેશભાઈનો ખૂબ સારો પ્રયાસ છે, આપણા જીગાભાઈનો, આપણા કોઠારી સ્વામીનો, આપણા બધા સંતોનો તો આની વાત વિશેષપણે પ્રસંગોમાં કરીશું। પણ અત્યારે ખાસ કરીને એવી મારી સૌને ભલામણ છે કે વધુ ને વધુ સંખ્યામાં આપણે આનો લાભ લઈએ, આપણા પૂર્વજોનો, આપણા વડીલોનું આમાં વંશાવલીમાં નામ ઉમેરાવીએ એટલું ખાસ મારી ભલામણ છે। તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપ સૌનું ખૂબ મંગળ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે અમારા જય સ્વામિનારાયણ। આજે વિશ્વની અંદર સુપ્રસિદ્ધ વડતાલ મંદિર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું અને આજે સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્વ હસ્તે લિખિત શિક્ષાપત્રીની આજે જયંતિ છે। 199 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને એ દિવસે સત્સંગ વંશાવલીની વડતાલ મંદિર વડતાલ ધામથી આજથી તેની સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું। આજના દિવસે સત્સંગ વંશાવલીની જરૂરિયાત એટલે પડી કે ઇતિહાસ એનો જ વંચાય છે જેનો લખાયો છે। જ્યારે સંપ્રદાયની અંદર જ્યારે ભવિષ્યની અંદર આજે મહાકુંભનો પણ પર્વ ચાલી રહ્યો છે આ વર્ષની અંદર, ત્યારે કુંભની અંદર પણ ભવ્ય જે સંતો ભેગા થઈ ને મહામંડલેશ્વર દ્વારા પણ કુલવૃક્ષ જેવી એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મથી ઊભી થઈ રહેલી ભવિષ્ય માટેની એક ચેનલ અને તેના ભાગરૂપે આજે વડતાલ મંદિરની અંદર સત્સંગ વંશાવલીની જ્યારે શરૂઆત થઈ છે ત્યારે જે સત્સંગીઓ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા છે તેના ભવિષ્ય માટેના સંરક્ષણ થાય અને તેમની વંશાવલી વંશવેલો કાયમ આગળ રહે, ભગવાનનું નામ તેની સાથે જોડાયેલું રહે તે માટેનો એક આજેથી એક પ્રયાસ ચાલુ થયો છે। વર્ષો સુધી આ જગ્યાએ જે તે સત્સંગીઓ આવે તેમના વંશ અને તેમના ભવિષ્યના તમામ સંકલ્પો સંપૂર્ણપણે લખાય તેવી વ્યવસ્થા આજે મંદિરમાં કરવામાં આવી છે। આજે સંપ્રદાયના આચાર્ય 1008 શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના સ્વહસ્તે આજથી આ શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આવનાર દિવસોની અંદર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે મૂળ સિદ્ધાંત સાથે જોડાયેલા જે સત્સંગીઓ છે તેની વંશાવલી આજથી વડતાલ स्वामीनारायण मंदिर में लखाશે। यहाँ पर जो सभी भाषाओं का जैसे मूल है, जो वंशावली पहले के समय में पिंगल डिंगल भाषा है और ये देवनागरी लिपि जो हमारी भारत की भी मातृभाषा के तरह पर भी देवनागरी लिपि उसमें वंशावलियाँ भी लिखी गई हैं। आज हम उसे गुजरात में गुजराती में ही कार्य करेंगे, हालांकि गुजराती भाषा भी 11वीं सदी की भाषा है। तो अब जो है हम अपने गुजराती में और मूल जो है हमारा इंग्लिश में भी चल रहा है, यानी तीनों लैंग्वेज में, हिंदी यानी देवनागरी लिपि में, गुजराती में और इंग्लिश में सभी में वंशावलियों को डिजिटल भी संग्रहित किया जाएगा। कैसे डिजिटल? ये डिजिटल यानी वेबसाइट के माध्यम से लोगों का जो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर ने पासवर्ड क्रिएट करते हैं और वो बहुत सेफ एंड सुरक्षित भी है और वो स्वयं जो है एक जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है उसी तरह से लोगों का हिस्ट्री बैंक की तरह ये कुलवृक्ष एप्लीकेशन है। अपने आप खुद अपना इतिहास खुद लिख सकते हैं, ऐसा एक प्रावधान है इसमें। एप्लीकेशन से और सब्सक्रिप्शन से आप अपना खुद का इतिहास आप अपनी खुद की लैंग्वेज से लिख के उसको स्टोरेज कर सकते हैं और यहाँ पर भी वो लिखवा सकते हैं, जहाँ पर हमारे वंशावली जो लेखक हैं यहाँ पर रहेंगे वड़ताल मंदिर में और वो आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरह से कोई भी वड़ताल मंदिर से जो भी जुड़ा हुआ केंद्र है, सालमपुर की बात करें या मुंबई की बात करें, भारत में अब इसमें कहीं पर भी फैला है, अब हम उसे सेंट्रलाइज भी करेंगे कि कोई भी सत्संगी कहीं से भी आता है यहाँ पर, केंद्र तो वड़ताल धाम है ही, यहाँ तो उसको आना ही है, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहेगा क्योंकि हमारी जो उपस्थिति है
संप्रदाय के सभी धर्मों में, मठों में, क्योंकि ये ऐतिहासिक केंद्र है, तो ऐतिहासिक केंद्र में ऐतिहासिक चीजों का ही उल्लेख होना चाहिए। उसमें जैसे कि यहाँ आ रहे हैं लोगों को ये इसके बारे में पूरा मालूमात हो, उसके लिए हम उसके बैनर लगाएंगे, हमारे जो कथा वार्ता होगी उससे हम लोगों को जानकारी देंगे और लोग अपने आप स्वयं अपना इतिहास खुद लिखें। इसलिए लिखे कि उनका इतिहास लिखा जाएगा तभी उनकी आने वाली पीढ़ी है वो उसको संरक्षित रख सकेगी, क्योंकि ये ऐसी बात है कि हमारा जो इतिहास है वो लिखा जाएगा तब हम उसको पढ़ाए जाएंगे, यानी कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको स्वामीनारायण संप्रदाय से जोड़ना होगा हमें, तो हमें आज से हमारा खुद का इतिहास उसके अंदर डालना होगा। तो इस बारे में हम वंशावली जो हमारा वंशीय पेड़ जैसे कि पहले हमारे भूतकाल में सब होता था, तो वैसे ही हम इसमें डिजिटली काम करने वाले हैं। और आज भी हम गुजरात में अगर बात करेंगे, जब से हमारा जो प्रयास शुरू हुआ है गुजरात में, तो ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से हम 90,000 से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो चुके हैं। परिवारों का इतिहास हम संग्रहित भी कर चुके हैं डिजिटल में। और अब हम जो है यहाँ पर रहकर जो भी और भी सत्संगी रह गए हैं और उनका यहाँ पे केंद्र भी, यानी एक जो हमारी परंपरा रही है इसको बंद नहीं करना है। जो हमारी परंपरा, लेखन की जो परंपरा है ये पूर्वजों से ही आई है, तो ये भी रहेगा, साथ साथ में डिजिटल तो रहेगा ही, क्योंकि लोगों के यहाँ पर 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी ज्यादा लोगों को पता नहीं है वो कहाँ से आए थे, मूल क्या है। अब हम उन्हें 10-10 पीढ़ी, 20-20, 25-25 पीढ़ी का रिकॉर्ड भी कुलविश के माध्यम से दिया गया है, जिसमें कोई भी भारत में रहने वाले कोई भी जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पटेल समाज, कड़वा पटेल, कोली, अंजना चौधरी, यानी कोई भी समाज की बात करें, जैन वणिक की बात करें, वैष्णव वणिक की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, तो उनको जो कुल परंपरा ज्ञान अब जो हो रहा है वो कुलविश के माध्यम से कई लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। डिजिटल के माध्यम से इसमें ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं उनकी जो दिन की क्रियाएं होती है वो अपने खुद के ऑडियो से भी उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि उसके भविष्य में आने वाले छोटे बच्चे होते हैं उनको भी 20, 25, 50 साल बाद अपने खुद के दादा के आवाज से भी वो अपनी जो प्रणाली है, वंशावली की प्रणाली है, वो कैसे उसको ठीक रखा जाए, संस्कृति में कोई अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं उसको ना हो और अपने खुद के जो कल्चर में ही ढाला जाए, उसके लिए वो खुद ऑडियो से भी अपना खुद का उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर वो खुद अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अपने वीडियोस होते हैं, अपने इवेंट्स होते हैं, वो सब उसमें एप्लीकेशन में वो कर एल्बम की तरह उसको संरक्षण रख सकते हैं। हजारों साल तक उसको देखा जाएगा। उनके खुद के परिवार के लोग अपनी खुद की बायोग्राफी अपने खुद के हिसाब से वो उसको एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा एक प्रावधान है।